everyone, and welcome to the second episode of Placement Talk series organized by FIPI IITISM Student Chapter. I am delighted to have you all here and super excited about all the conversations we will be having today. As a guest of honor, we have our amazing seniors with us. First of all, I would like to congratulate them on behalf of FIPI IITISM Student Chapter for getting placed in such a prestigious company. Getting a chance to talk to these people is such an honor for me, and I know it will help all the aspirants to achieve their dream job in their dream company, like here in India. So, I'm Shivangi Patel, your host for today, and now I would like to call my partner in crime, Saurav. So, welcome to the show, Saurav. Thank you, Shivangi, for such an amazing start of the session. Hi, everyone. I am Saurav, co-host for today's session. I am really excited to have an opportunity to interact with our respected seniors who got a fantastic kickstart in their professional career of oil and gas industry with Kane India. Kane Oil and Gas is one of the largest oil and gas exploration and production company in the country. It is a private company with Vedanta Limited as its parent company. Kane has executed world's largest enhanced oil recovery polymer flood project and is widening its horizons in many areas due to its interest in modern technologies. So, Kane is a dream company for many aspirants now. So, without any further delay, let's get started with brief introduction of our seniors today. So, all of our seniors are appointed as graduate engineer trainee at Kane India. So firstly, I would like to introduce our seniors who got pre-placement offer at Kane India. So firstly, we have Shashwat Agarwal sir, and then we have Aman Kumar sir, and then we have Devosmit Banerjee sir. Now I would like to introduce the seniors who are placed in Kane India. So firstly we have Suyash Akash sir, then we have Gaurav Kosta sir, then we have Kanishk Singh sir, then we have Sankadeep Vishwas sir, and lastly we have Kumar Piyush sir. Congratulations again sir for being a part of such a reputed company. We are really delighted to have you all here now. Moving on to the questions, we all know that first company plays a major role in our career and deciding first company is very important task. So, sir, my question is, what were the things that made you choose Kane India as your first company? Like, why did you prefer Kane India over other PSUs? I would like to answer this question. Yes. Bro, in this department, you don't get to choose. Frankly, you just take what you are getting. Yes, sir. I think that will be the answer to this question for most of us. For the PPO people, ONGC doesn't come for hiring interns, right? So we got selected by Kane, and who doesn't want a PPO in one of the biggest oil companies in India? So of course, for the PPO and for the rest of the people, they will answer for the campus selects. Thank you, sir, for your amazing answers. Factors to choose a company plays a very important role, and surely we are familiar with some of them now. This would really help us in future. So we do know specific company looks for a specific skill set while looking for employees, and we are always encouraged to learn some important skills like communication skills, presentation skills, and so many others. So my question is, what skills does Kane India really focus on during the selection process? And was there any influence on like extracurricular activities in the entire selection process? Sir? For a company like Kane India, in my view, that communication skills and a great GPA plays a significant role. Like I don't have any significant extracurricular activity in my CV. I just had GPA and communication skill, and I just got selected on these two. Also, knowledge of the subject means GPA doesn't account for the knowledge, because some people they have high GPA, but their knowledge on the technical is crap. The thing is that you have to maintain a good attitude throughout your whole career of these 4 years, okay? Because Kane is a company which looks for personality as well as knowledge of the subject. Because if you don't have the right attitude in your mind, you won't get selected in any company, not just Kane. You have to keep that fact in mind that you are going to work for a company that is working on so many different levels, and that you will be part of a big system is going on and you will be part of it. So to fit in, you have to mold yourself according to that.
And speaking of exactly some qualities that companies look in this, so Kane mostly goes for technical part, and I don't know why this year it didn't take into account the extracurriculars, but mostly Kane looks for extracurriculars. It is nice to have some kind of extracurricular part which enhances your personality mostly. Okay, so you have to have that thing. See, from my point of view, if you have a good GPA, then you have an advantage. But again, you need to defend that GPA in the interview, because the higher your GPA, the tougher your questions get. The people who will come to interview you, they will expect more from you. So you should be able to defend your GPA, and having extracurricular always helps. Even if you don't have a very high GPA, if you have a very good profile and you can answer the technical questions also correctly during the interview, then you're bound to get selected. You required a decent GPA only to clear the interviews, and good technical knowledge, and communication skills and HR. That's enough for the Kane, I guess. Not too much. Thank you, sir, for all of your insightful answers. We learned a lot from this. Like, we have to have a good GD, a good HR round, and doing good in a technical round will always benefit us. And putting our attitude in right directions will help us in the interview process, especially for Kane or any other company. And we do not have to lie in our CV, and we should write what we know. So, sir, now moving forward. So, sir, in this world full of tech companies and skills like machine learning, being such a important topic to solve and predict modern life problems. So, sir, my question is: does skills like coding have any major impact on selection process of Kane? No, I don't For know. Kane, it is not. Like during our Then intern doesn't- process, I did something which became very simple when done with ML. But my mentor clearly stated that you are not allowed to do that. For Kane, it's simple Excel. Excel is the basic skill and the most important skill that you can learn. Yeah. Means Yeah. you will learn later when you join the company or you do internships, you will learn to use different software, simulation software and modeling softwares, but that is okay. Even if you don't know to use how to use petroleum engineering softwares during the interview, it is not a problem, and coding is certainly not asked in the interview. But if you are writing those machine learning things, it will be advantage, because I have written one project on it and they have asked it very much, like 4 or 5 questions on this. There was a discussion of 5 minutes in my placement talk. Like With if the- you are doing a coding project which is related to the industry, petroleum industry, I mean, then those kind of projects may give you an edge in any interview, even in the petroleum sector. But if you are doing something which is means widely away from petroleum sector in coding, then it doesn't matter when we talk about core petroleum companies like Kane, ONGC. One more thing is like basic coding, I think you all should know. It's a general skill in this modern world. You should know a basic skill set, very basic, not just because of companies and all, just in life, a skill you should have. Yes. Thank you, sir. That was very insightful and would surely give us an edge. And we should really learn new things in our leisure time. Like moving forward, my next question is: what were the different rounds during the placement and internship selection process? Well, for internship selection, the rounds consisted of a GPA shortlist. Means initially, before in our senior year batches, Ken used to take up the internship test, and based on that test, they used to shortlist people for the GD. But from our year, they are doing it based on their CGPA. So based on your CGPA, they will shortlist candidates, and then you will have GD. And based on GD, again another shortlisting will be done, and then you will have the personal interview. And in the personal interview, it will be both technical and HR interview. That was that for interview purposes for internship selection. For placements, there were 3 rounds. First one was technical round. First one was a 7 GPA cutoff.
After then, there was a technical round. You will have 40 questions, out of which 10 will be aptitude, 30 will be your technical. Out of that 30 questions, 5 or 6 questions will coincide from GATE previous year questions. So you must revise your previous year questions before attempting that. And I would say you should try to correct maximum questions in that technical round because it matters in the end. And then there will be GD round, and then there will be interview round. Thank you, sir, for nicely explaining different rounds of selection process. And I'm sure most of our doubts regarding the selection process has been resolved now. So knowing these details beforehand would be a great deal to all of our aspirants. So now, sir, we have heard a lot about the group discussion round, and hello. it is a very important round in interview. So Can I speak? Yes, I'm sir. sorry to continue. Yes. So one more thing that on my personal note I would like to say, like I got shortlisted in the intern round for the GD and मेरा कट गया भाई GD में, ठीक है? And तुम यहाँ सब डिस्कशन कर लोगे सब चीज के बारे में कि कैसे क्या करना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, क्या चीज पे बात होगा, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? तो इंटरव्यू में ना यार पहुंचने के लिए तुम्हें GD क्लियर करना पड़ेगा, टेक्निकल क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी अगर GD में कट जाएगा ना, बहुत खराब लगेगा, ठीक है? इसीलिए GD का प्रैक्टिस करना, ठीक है? हमने तो की थी भाई, खराब अंग्रेजी है हमारी, ठीक है? तो बहुत प्रैक्टिस करी थी। GD का प्रैक्टिस करना ताकि बोल सको, वहां जाके प्रैक्टिस करो कि कैसे ज्यादा ना बोले, कम ना बोले, एडिक्वेट अमाउंट में बोले, ठीक है? पीयूष को पता है, पीयूष के साथ बहुत प्रैक्टिस करी है। और गलत चीज नहीं बोलने का, गलत चीज नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक है? 5-6 का व्हाट्सएप ग्रुप बना के GD हर दिन तुम लोग कर सकते हो। लाइक हमने और संकेदीप ने तो करा था। और मतलब ऐसा होता है कि तुम लोग अगर रीसेंट टॉपिक्स पे कर रहे हो तो सेम टॉपिक ही आ जाता मोस्ट प्रोबेबली। आ जाता है। लाइक अपन ने कोविड पे करा था और कोविड पे ही था, तो कुछ पॉइंट्स तो तुमको याद होंगे तो तुम डायरेक्ट उस टाइम बोल सकते हो। So would you like to give any pro tips for GD round? Like if you have लो देखो भाई ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ये GD राउंड वगैरह में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहता है। ऐसा कुछ फास्ट रूल नहीं है कि यार हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा हो ही जाएगा, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है जो भी आपका GD ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बोलने पे हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि तुमने कम बोला लेकिन 2-3 पॉइंट बोले लेकिन सही पॉइंट बोले तुम्हारा हो गया। तो उसके लिए कुछ रूल नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वही उसी दिन डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वो GD के पॉइंट्स भी वापस तुम्हें ऐसे सामने पुट कर देंगे। जैसे मेरे साथ हुआ था इंटरव्यू में, the interviewer said that Shashwat, some of your points were quite bizarre, and he quoted me. He quoted what I said during the GD round. So ऐसे कुछ भी मत बोलना। Like I would like to say something about GD selection. Like in GD, what's the motive of GD? If you want to get selected in GD round, then you have to get noticed. Okay, getting noticed is the point. So how you will get noticed? Like there are 6 people, 4 of them are said, like there is a topic. Okay, 4 of them are saying that I agree. Then you have to say I don't agree, and you have to justify why you don't agree. You have to get noticed. See, this is the point. Just get noticed by the panel. Then you are selected. Give different point than what the majority of crowd is. अबे तो बट ये भी ध्यान रखना कि मतलब कुछ मतलब रैंडम या फिर उल्टा सीधा, मतलब डोंट गेट नोटिस्ड इन द रॉन्ग, दैट इज द थिंग। बिकॉज से अमन जो बोल रहा है ना कि नोटिस होना है, तो से you require a certain amount of courage to go against a group of people, and अगर तुम उसको जाके और वहां अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो ना, then you have a very crucial skill set, ठीक है, जिसको तुम यूज कर सकते हो किसी भी मीटिंग में। हाँ बोलो। And there is a very fine line between being smart and being over smart. हाँ exactly। ये ध्यान रखना, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुमको वो लोग नोटिस कर लिए बट वो गलत तरीके से नोटिस कर लिए, दे स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर रूड। सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अगेंस्ट में GD में नहीं बोलना है, नहीं तो स्ट्रेट बैक कटेगा भाई, कितना भी अच्छा बोले हो, कभी नहीं बोलना है। रिन्यूएबल एनर्जी इन सब पे भी मतलब ध्यान से बोलना है। पेट्रोलियम को
अच्छे से बोलना है, उसके अगेंस्ट में नहीं कभी बोलना है। मतलब जनरली ध्यान से बोलना है। अगेंस्ट में मतलब तुम ऐड कर सकते हो कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नहीं, और एक इम्पोर्टेंट थिंग याद रखना है कि ये ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिबेट नहीं है। फॉर में बोलो, अगेंस्ट में बोलो, जो भी बोलो, बी रेस्पेक्टफुल टू एवरी। और जब कोई और बोल रहा है ना, मतलब मान लो कि अमन, अभी अभी हम लोगों का जीडी चल रहा है मान लो, ठीक है, तो पहले अमन बोल रहा है, तो फिर मतलब लुक एट दैट गाय व्हाइल ही इज स्पीकिंग एंड समटाइम्स नॉड योर हेड, मींस इट शोज पीपल दैट यू आर लिसनिंग टू हिम एंड यू आर एक्चुअली। तुम उसका नोट्स भी ले सकते हो कि वो कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, उसका नोट्स ले लो, फिर बाद में उस पॉइंट को लेके उसके साथ बात करो। मींस इट्स अ टू वे थिंग, इट्स नॉट एन, मींस आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अमन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स एज अ टीम। मतलब एक टीम में तुम जब काम करोगे तो तुम कैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ बात करोगे, कैसे उनके साथ बिहेव करोगे, ये देखने के लिए ही जीडी किया जाता है। Exactly. So just remember that you're his teammate, you need to respect him, but at the same time you need to put in your point also. Exactly. And you need to listen to also to other people. जीडी का एक Like- बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट होता है आपका लिसनिंग स्किल कैसा है। दूसरे लोगों को मतलब सुनना है, और ऐसा नहीं कि बस अपना बोलते जा रहे हैं और एकदम ही एक्सट्रीम में जाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरे लोगों को भी सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, और उनके पॉइंट्स को आप अपने में मतलब ऐड कर सकते हैं कि हाँ इसने सही बोला, इसने ऐसा बोला। तो मतलब जीडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका लिसनिंग कैसा है, आप लिसनिंग में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, कि बस अपना बोलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरे का सुनना है बहुत ध्यान से। और कंक्लूड जब करो तो कंक्लूजन में सिर्फ अपने पॉइंट्स नहीं बोलना है, पूरे जीडी का कंक्लूड करना है। किसी ने अच्छा बोला है तो किसी के पॉइंट्स को उसको इंक्लूड करना है। कंक्लूड में कंक्लूजन जब भी होता है तो तुम अपने व्यूज नहीं रखते हो, उसमें फिर जीडी के व्यूज रखते हो कि जो ग्रुप डिस्कशन हुआ इसमें क्या मतलब निकला, क्या रिजल्ट निकला इसका। गौरव, if I can add, तुम लोग ना सब लोग बैचमेट्स हो, probably you all going to sit against one another, ठीक है? तुम लोग एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते हो। Try to make the whole discussion bit continuous in nature. Just like कि अमन कोई पॉइंट बोल रहा है and I have already written a point in my 1 minute time. That doesn't mean कि मैं सीधा अमन को अमन के अगेंस्ट जाके या अमन ने जो पॉइंट दिया है उसके टॉपिक को तोड़ के मैं कुछ सेकंड पॉइंट पे स्टार्ट कर दूं। Try to make it continuous. If Aman's point is valid, or if it is not valid, try to first continue with his point. If you are preceding him, or for example, if you are similar for succeeding someone, थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे ना तो फॉर एग्जांपल पहले तो ये वो नहीं होता, क्राउड नॉइज थोड़ा कम होगा, सब लोग दूसरे को पोक करना कम करेंगे। सेकेंडली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट थिंग है कि तुम लोग दूसरे को जानते हो, you all going to sit against one another, so you have time to prepare against one another also. So ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे ना तो इंटरव्यूअर को मोर ऑब्वियसली तुम्हारे पॉइंट्स मैटर करेंगे ज्यादा इस केस में, बट अगेन इंटरव्यू को लगेगा हाँ डिस्कोर्स इज ह्यूमेन इन मेनी नेचर्स, कोई जंगली पंथी नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है? कोई एक दूसरे फायर नहीं कर रहा है या प्रोसीड कर रहे हैं एक दूसरे को अच्छे और नॉर्मल वे में। आई थिंक यही बेटर होगा। और एक थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग जो तुम कर सकते हो कि मान लो कि कोई ऐसा तुम लोग जो यहाँ पे हो वैसा बंदा नहीं है, मतलब बाहर का कोई बंदा है जो यहाँ पे आज भी इस मीटिंग में नहीं है, तो वो बहुत एक्साइटेड होकर दोनों लोग लड़ने लग गए बीच में, तो मॉडरेट भी कर सकते हो उस टाइम की, यू कैन आस्क देम टू कूल डाउन एंड देन गेट बैक टू द पॉइंट, सो दैट आल्सो इज अ गुड थिंग टू गेट नोटिस। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर टीम में कोई प्रॉब्लम हो गया तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। सर काफ़ी चीज़ें पता चल गई जीडी के बारे में। काफ़ी अनसर्टेन प्रोसेस होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिबेट नहीं होता है, और हमको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, पोलाइटली अपने दोस्तों को एज अ टीम वर्क करना है, एक्नॉलेज करना है और रिस्पॉन्सिबली प्रोसीड करना है, और पेट्रो की बेइज्जती नहीं करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, like we were all aware of the fact that planned things always results in better outcomes compared to unplanned things. And sir, with respect to interview, selection of a specific subject to act as our foundation of preparation is a major decision. So sir, my next question is, what was your preparation strategy for the placement process and internship also? And sir, according to you, what should be the best way to select our specific subject for the preparation?
I will say about the internship what we generally did. I don't know about the placement. Like in internship, they usually ask to you, like they know that you are third year people and you have not studied and you don't have much deep knowledge of petroleum. So the panel usually asks कि भाई क्या पढ़ के आए हो बताओ. So my what I say that you can prepare a few chapters. Okay, you can also prepare an entire topic like drilling reservoir production. You can say that I have prepared drilling, but drilling is very vast. You can prepare a specific chapters and you can say that I have prepared this particular chapter, and the questions will be asked from that chapter only, and it increases your chance of getting selected for internship. And the questions are also asked from your training. So what training you have done, you have mentioned in your CV. Go through that training means completely. Yeah. See, I would like to make a point here. And now the thing is that when you have a high GPA, that creates some problems here in this thing during the internship interview. From my personal experience, my interview was almost 55 minutes long, and they asked me questions from everything. Means I started with reservoir engineering, so they started with phase diagrams and reservoir engineering. Then they moved on to different drive mechanisms, and then they moved on to capillary pressure, relative permeability. Then they moved on to drilling. Then they moved on to production engineering. So means it will be wise to have a basic idea of all the three, and then you can focus, like Aman said, then you can focus on one particular topic. So you can focus on well control and then read everything about well control, but you should know each and every letter of well control in that case if they ask you, and then also have a basic idea of all the three subjects. प्लेसमेंट वाले के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है. सो इंटर्न में तो उन्होंने पूछा था कि क्या पढ़ के आए हो, क्या पसंद है, ठीक है. प्लेसमेंट वो नहीं पूछे थे. आई थिंक किसी से भी नहीं पूछे थे. शायद अगर किसी से पूछेंगे दे आर वेरी लकी, बट मेजॉरिटी पीपल से उन्होंने खुद से बस एक पहला इनिशियल क्वेश्चन किया. मतलब जिस डिपार्टमेंट के बंदे ने क्वेश्चन किया उस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होगा वो. ओके, सो मेरे से पहले ड्रिलिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर प्रोडक्शन का पूछा गया, फिर रिजर्वायर पूछा गया, फिर पूरा सीवी में जितना टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ था वो पूछा गया. एंड उसके बाद पता है बहुत अच्छा चीज हुआ, लाइक इस चीज के बारे में अगर पहले नॉलेज होता तो मैं पढ़ के भी जाता थोड़ा सा. और वो ये था ना कि उन्होंने ऐसा चीज पूछा जो 8th सेमेस्टर में था, जो हमने पढ़ा नहीं था. दैट इज EOR. ओके, सो EOR हमने पढ़ा नहीं था, उन्होंने पूछा हमसे. एंड अभी मुझे पता चल रहा है बाकी लोगों को, लाइक जितना कि कभी 12 लोग का इंटरव्यू हुआ था. ओके, सो 12 में से शायद 3 या 4 ही थे जो बोल कहते कि हाँ हमने EOR पढ़ा है. बाकी सब ने पता है क्या बोला था? बाकी सब ने बोला था कि सर 8th सेमेस्टर में नहीं पढ़े हम. ओके, सो वहां पे जिस बंदे ने बोला कि मैंने EOR पढ़ा है, ठीक है, वो बंदा स्टैंड आउट कर गया. ठीक है, ऐसे क्योंकि वो बंदा बोला ऐसा चीज जो बाकी कोई नहीं पढ़ा है. ठीक है, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज दे नो कि वो 8th सेमेस्टर में है. बाकी सबने बोला 8th सेमेस्टर में, तो दे डोंट एक्सपेक्ट वेरी मच ऑर्डील ऑफ यू कि तुम EOR में कितना कुछ जानते हो. वो तुमसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस ना, तुम समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन 100% है, बिकॉज यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. तो प्लेसमेंट में यार सब पूछ लिया था हमसे. लॉगिंग भी पूछा, EOR भी पूछा, ठीक है, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, रिजर्वायर. मेरे से तो यार मतलब 6 सब्जेक्ट पे बात हो गई थी. ठीक है ना, तो फिर मैं तो ये बोलूंगा कि भाई सब पढ़ के जाना. ऐसे कुछ अपना फेवरेट मत बना लो अभी से. ठीक है. और एक इम्पोर्टेंट चीज है इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना. मतलब एटलीस्ट इंटर्नशिप का इंटरव्यू में तो था, मतलब इंट्रोडक्शन अच्छे से देना. मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, 3 मिनट 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन देना मैक्सिमम. बट जो बोलोगे बहुत पॉजिटिवली हाईलाइट करना उसको. अगर तुम बोलते हो कि तुम FIPI का पोजीशन होल्डर हो, बट वहां पे बोल के उसको स्तम मत कर देना. ये उनको समझाओ कि तुम FIPI का पोजीशन होल्डर हो के तुम्हारा क्या स्किल सेट डेवलप हुआ है. तुम टीम वर्क करना सीखे हो, तुम बच्चों को लीड करना सीखे हो, तुम इतना सारे वेबिनार्स अटेंड किए हो, तुम इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सीखे हो, तुम होस्ट करना सीखे हो, तुम एंकरिंग सीखे हो, तुम पब्लिक स्पीकिंग सीखे हो. तुम ये बताओ
पीपी से तुम क्या सीखे हो, बस ये बता के खत्म मत कर दो कि मैं पीपी का पोस्ट होल्डर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस गोज विथ अदर सोसाइटीज एज वेल, कि तुमने क्या क्या सीखा है, फिर तुम जो कहीं पे कुछ गए हो कि कुछ नहीं किया हो तो वो भी बताओ। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट ऐड कर देता हूँ इस चीज में। देखो, इंटरव्यू को ना बहुत लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं कि यार मतलब कैसा होगा इंटरव्यू, क्या होता है इंटरव्यू में। बहुत ही लेमैन टर्म्स में ना ब्लाइंड डेट होता है, ठीक है। इट्स अ ब्लाइंड डेट, नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज इंटरव्यूअर तुमको नहीं जानता है, तुम इंटरव्यू को नहीं जानते हो, ठीक है। तुम चाहते हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने का, ठीक है। तुमको अपना हर पॉसिबल जितना अच्छा क्वालिटी है ना उसको शो करना है, ठीक है। तुम किसी डेट में जाते हो किसी लड़की के साथ स्लैश लड़का के साथ, ठीक है, तो तुम भाई वहां जाके ये थोड़ा ना बोलोगे कि यार मैं पीपी पे वो, तुम बोलोगे ना मुझे पब्लिक स्पीकिंग आता है, मुझे वो आता है, मुझे फलना आता है, मुझे डिमका आता है, ठीक है। तो टेक इट एज ए डेट, फर्स्ट डेट, ठीक है। ऐसा हो कि सेकंड डेट तक बात बढ़ सके, इतना करके आना है वहां तक बस, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करना। अबे एक और चीज, अबे तुमको लग रहा होगा ना कि ये सब पहले से ही बहुत सारा प्रिपेयर करके चले जाएंगे, कि अगर ऐसा प्रिपेयर कर लेंगे कि वो ये पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा, वो ये पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा। बी रियल, कोई जरूरत नहीं है कुछ प्रिपेयर करने की। मैक्सिमम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो प्रिपेयर करके जाना बस। मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एन ओपन माइंड रिगार्डिंग द इंटरव्यू। मतलब एकदम घबरा मत जाना कि मतलब तुम जैसे सोच के जा रहे हो अगर वैसे शुरू नहीं होता है तो घबरा मत जाना। जब मेरा इंटरव्यू चालू हुआ था, मैं घुसता तो वो मुझे पूछा कि अरे बैठो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता हो, ये पहला क्वेश्चन था। तो मतलब ऐसे ही, मतलब मैं बोला ओके ओके क्लोज द डोर, सिट एंड टेल द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और एक और बात, जनरली जो टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो ऐसे वन वर्ड आंसर नहीं होते, मतलब या वन सेंटेंस आंसर। टू रीच टू द आंसर देयर इज एन अप्रोच। जैसे तो तुम ऐसे 1 मिनट सोच रहे हो बैठ के और फिर आंसर बोलोगे, तो उससे बेटर है कि जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना तुम वो बोलते जाओ साथ में। तुम्हारी अप्रोच टू द आंसर बहुत मैटर करती है। जैसे मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ था कि वो क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं उन्हें साथ साथ में अप्रोच बताते जा रहा था कि आई एम थिंकिंग दिस फॉर दिस। और फिर उसके बाद जैसे मैं किसी पॉइंट पे रुक गया, तो अगर तुम वो माइंड में सोच के रुके हो तो तुम आंसर ही नहीं बोलोगे, तुम बोल दोगे आई एम अनएबल टू रिकॉल। बट अगर तुम उन्हें अप्रोच समझाते समझाते रुके हो, जैसे मैं बीच में रुका था तो उन्होंने बोला या यू आर गोइंग गुड, कीप गोइंग, वो हिंट देंगे तुम्हें कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो एक ये हैबिट बना लेना कि कोई तुमसे क्वेश्चन कर रहा है तो जो तुम्हारे माइंड में अप्रोच चल रही है वो भी साथ साथ में बोलते जाओ। Thank you, sir, for all the things that we have got to know through this discussion. Preparation strategies surely play a major role in making our path easier as well as systematic, and helps us achieve our goal in time. So we also got to know about the importance of internships and how we should try to make our 100% from our opportunities. So moving on to the next question. So, sir, getting a pre-placement offer definitely keeps us away from like lot of pressure, tension, and anxieties. So my question is, how was the internship experience and the work culture in the company, sir? And is there any specific criteria for getting the pre-placement offer after internship? Question good. देखो भाई, बात यह है कि इंटर्नशिप में तुम लोगों को एक मेंटर अलॉट किया जाएगा और एक टीम में तुम रहोगे। अब ऐसा नॉर्मली ऑफिस में क्या होता है, मतलब इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट एट द ऑफिस देन यू गेट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल देयर, योर सीनियर्स, योर alumni, you get to interact with lot of people, you get to develop lot of relationships there. But online, अभी ऑनलाइन हो रहा है, हम लोग अभी ऑनलाइन हुआ था और हमारे जूनियर बैच, तुम्हारे सीनियर बैच का भी ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है काफी। मतलब ऐसे तो तुम ऑफिस में जाके इतना इंटरेक्शन कर सकते हो, वैसे तो नहीं कर सकते। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तुम जितने सारे लोगों के साथ हो सकता है बातचीत करो, उनको उन्हें ईमेल आईडी तो होता ही है, उनको लिंक्डइन में पिंग करो, बोलो कि तुम बात करना चाहते हो, अगर मतलब तुम्हारे पास कुछ है बात करने लायक। और मेनली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम अपने मेंटर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करो, मतलब फॉर्मल बट एट द सेम टाइम गुड रिलेशन। सिर्फ मतलब फिर वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, वो जैसे तुमको गाइड करते जाएंगे उसको करो, तुम अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करो
और बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंड रिव्यू जो प्रेजेंटेशन होगा, मतलब एट द एंड ऑफ द 2 months you will have to present your project to the head of the department and other big people who will be there. जैसे शाश्वत, मेरा और अमन, शाश्वत और अमन का पी डिपार्टमेंट में था, मेरा ड्रिलिंग में था और निखिल का रिजर्वायर में था। और पी एंड ड्रिलिंग का एचओडी सेम है, संजीव वर्मानी सर, तो वो रहते हैं वहाँ पे। और वो रहते तो है, वो सुनेंगे तुम्हारा प्रोजेक्ट, फिर वो चालू करेंगे पूछना क्वेश्चन तुमको, और वो तब तक पूछेंगे जब तक तुम गलती ना कर रहे हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू आर मेंशनिंग इन योर प्रेजेंटेशन यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मतलब तुमको उसका नॉलेज होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा एक भी वर्ड नहीं होना चाहिए जिसके बारे में तुम्हारा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फिर वही वर्ड चूज करेंगे, उसी से पूछेंगे, और अगर तुम आंसर नहीं कर पाओ तो इट मेक्स अ बैड इंप्रेशन। तो अगर तुम वेरमानी को खुश कर पाओ, या फिर जो भी तुम्हारे एचओडी होंगे, बाकी लोग रहेंगे, उनको तुम अपने आंसर्स लेके सेटिस्फाई कर पाओ, उनको लगे कि तुम अच्छा प्रोजेक्ट किए हो, और तुम्हारा मेंटर भी तुमको अच्छा फीडबैक दे, तो ये सब फैक्टर्स के बेसिस पे पीपीओ सिलेक्ट होता है। बाकी अमन और शाश्वत ऐड करो अगर कुछ और point. Like in Kane, next year most probably the internships will be offline. Okay, so we had a online internship, but you people will have an offline internship, and the people at Kane are highly cooperative. Okay, to get a PPO you just have to impress the people at your end presentation. There will be HODs from all the departments, all the mentors will be sitting there, and other people who are at break, they will also come and sit. There will be approximately 50 people in that room, and you will present your project in front of all those people, and you just have to impress. How to impress? You should have a good communication skills. Okay, so I would suggest you start working on your soft skills, like how to communicate. Okay, so if you impress everybody in the room, you get a PPO. Simple. And that's I think ये presentation skills, communication skills ये तुम में हैं, और अगर तुम select हो गए हो, अगर तुम वहाँ intern कर रहे हो, ये already है, मतलब बस काम करो और लास्ट में अच्छा presentation देना है। और लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, तुम मतलब सच में बहुत, सब कोई बहुत हेल्पफुल है कि इनमें तो बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देगा कोई भी। तुम किसी भी बंदे को कभी, जैसे हमारा तो ऑनलाइन था, ऑनलाइन में इतनी किसी को भी तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी को भी कभी भी मैसेज कर सकते हो, दे विल बी रेडी टू हेल्प। You can also go in the HOD's room to ask something. Means everybody, even if they are at very high rank, they are fully cooperative and friendly. Okay, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा सीनियर है तो इनसे हम बात भी नहीं कर सकते. Okay, HOD से ही पूछ सकते हो, सर ये कैसे होता है. Thank you, sir. We know a lot of things about internship process and what happens after we get selected into internship, and what should we do to get PPO and convert our internship into PPO. Like अपने मेंटर से गुड रिलेशंस क्रिएट करने हैं, एंड प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन जो हम लास्ट में देते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, बिकॉज सारे के सारे मेंटर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. सो सर, so enough of the formal questions. Now, sir, let's move on to the public demand questions that we got on our public social media handles. So, sir, you have given a lot of interview, like for during internships and during placements also. Sir, so you must have faced a lot of questions there. So, sir, which question was the most difficult to tackle, according to you, sir? Means in the internship interviews की बात कर रहे हैं? Yes, sir. Like in HR rounds and technical. यार केन में HR ने तो जितने लोगों का इंटर्नशिप इंटरव्यू हुआ था, HR ने कुछ नहीं पूछा था. HR was just observing you. HR will just sit in a corner and he will observe how you are speaking, you are hesitant or not, you are how much confident you are, and here comes the play of soft skills, as I said before. Yes. पूरे इंटरव्यू में personally for me the most difficult question was are you sure. एक्चुअली यही सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी ऑप्शंस बन सकते हैं. मे बी यू आर राइट इन एनी क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी पर्सनल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यू कुड बी राइट एज वेल एज रॉन्ग. सो ये तुमको खुद अपने इसमें दो चीजें चेक हो रही हैं, शायद तुमने आंसर गलत दिया है एंड दे वांट यू टू करेक्ट योरसेल्फ, और सेकेंडली यू आर राइट बट दे वांट टू चेक हाउ मच यू थिंक यू आर करेक्ट. तो इसमें शायद मैं या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता तुमको. इसमें तुम्हें खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि तुम इसमें क्या बेस्ट आंसर दे सकते हो. ठीक है,
देख लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आंसर में श्योर नहीं हो तो पहले ही बोल दो सर, आई एम नॉट श्योर इन द आंसर बट आई थिंक द आंसर माइट बी लाइक एग्जैक्टली। ठीक है Sir, would you like to add some out of the box question that were asked to you in technical rounds also, like unconventional questions? मैं बता देता हूँ। टेक्निकल में जैसे मुझसे पूछा गया था कुछ चीज, मतलब देखो ऐसा है ना कि उनमें ना एक नैक होता है, ठीक है, जो पहचान जाते हैं तुम्हारा कौन सब्जेक्ट वीक है, कौन सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। जैसे प्लेसमेंट में हुआ था, ठीक है। अब पर्सनली मेरा प्रोडक्शन, रिजर्वायर, ये और लॉगिंग, ये चारों अच्छा है, ठीक है। ड्रिलिंग यार नहीं आता उतना, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि मेरा ड्रिलिंग में स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, और संजीव सर ही लेना स्टार्ट किए थे। तो उन्होंने तो यार पहला 3 क्वेश्चन दागा मेरे पे, भाई मैंने किस तरह डॉज किया, मतलब बोला कुछ। तो वो सब पूरा पैनल समझ गया था कि मेरे से ड्रिलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ना संजीव सर ने फाइनल ब्लो मारा, मतलब फटाक से लात मारा मेरे को। उन्होंने बोला कि HWDP बताओ क्या होता है। अबे यार अभी तक नहीं आता HWDP क्या होता है मुझे, ठीक है। तो HWDP पूछा यार, मैंने कुछ आलतू फालतू आंसर दे दिया, ठीक है। मोस्टली मतलब पार्शली सही था, पार्शली भरा हुआ था, ठीक है। तो अब भाई हम सर समझ गए। फिर सर मेरे से खुद पूछे उस समय कि यार तुमको ड्रिलिंग पसंद है कि नहीं पसंद है, ये बताओ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि सर नहीं आता है उतना अच्छे से, ठीक है। तो कुछ चीजें ना तुमसे वो तुम्हारे अच्छे सब्जेक्ट्स पे नहीं पूछेंगे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, सबसे वीक पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा ब्लो मारा जाता है। किसी चीज को तोड़ना भी अगर होता है तो उसका वीक पॉइंट पाया जाता है और उसी पे हेवी ब्लो मारते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे भी करना होता है कि तुम्हारा कोई वीक पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पकड़ ही देंगे। तो यहाँ पे बैठ के तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा हार्ड क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन मेरे लिए यार वो HWDP वाला था, ठीक है। वो क्या होता है क्या नहीं होता अभी तक पता नहीं। Yes sir. Thank you, sir. That was really fun. Getting to know your personal experiences surely connects us all. It helps us to have some idea about the level of difficulties of the question to prepare and to prepare accordingly. So moving forward, so we all know that there is always a certain things regarding which we think if we got a chance we can do better in that. So my question is, if given a chance, which question would you like to answer differently, sir, and how? पता नहीं यार, HWDP वाला ही बोल दूंगा मैं, बाकी तो मैंने सही देख के आया था सारा आंसर। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ब्लो आउट हो गया तो क्या करोगे, और फिर हम उसको 5 मिनट तक समझा रहे थे, वेट एंड वेट मेथड और ड्रिलर्स मेथड, और फिर 5 मिनट बाद वो सुन के बोलते हैं कि भाग जाएंगे। हाँ यार भाग जाएंगे। आउट हो गया तो भागोगे ना भाई। हाँ यार बिल्कुल भागना पड़ेगा भाई, वो बाद में सोचना वेट एंड वेट लगाओगे ड्रिलर लगाओगे, पहले जान बचाओ। अरे वो वेल कंट्रोल क्या है, तो गोल ब्लो आउट हो ही गया, अब क्या करोगे कंट्रोल वो किक का है बेसिकली, ब्लो आउट का अलग है। अब तो यार देखो अच्छा क्वेश्चन था यार ये। Okay, thank you, sir. That was really amazing to listen your answers. So, sir, moving forward to next question. So, as an Indian, we love jugards, right? We always find different ways to get things done fast and in easy way. We always find shortcuts to different things. So, sir, in reference to this feeling, as an engineer, what was your best jugaad in 4 years of your engineering? Last जूनियर से प्रैक्टिकल लिखवाना। नहीं यार ये सब ये नॉस्टैल्जिया दे रहे हैं। तो क्लास से पीछे से भाग जाता था मैं, तो वही था शायद प्रोडक्शन के क्लास में काफी लोगों ने किया होगा यहाँ पे। यार पीछे वाले गेट से भागना इट इज अ टैलेंट, मतलब तुम दूसरे कॉर्नर से भाग रहे हो, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो यार तुम गलत हैबिट्स मत सिखाओ जूनियर्स को, ठीक है। इनको पता नहीं था ये चीज के बारे में। अबे तो ये तो कर ही नहीं पाएंगे, ये कॉलेज ही नहीं जा पाएंगे, कहाँ से करेंगे। अबे तो जाएंगे ना फाइनल ईयर में, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कभी जा ही नहीं पाएंगे। Shivangi. Yes. So moving forward, so we know that college plays a very crucial role in defining our life. So many of our firsts happen here, and we learn so many of our life lessons, like lessons to adapt, lessons to give, lessons to enjoy life, and whatnot. So my question is, how have these 4 years impacted your life, sir? 4 ईयर मत बोलो यार। हाँ यार 4 ईयर मत बोलो, तकलीफ होता है।
3.5 years बोलो. Yeah, okay, sir. 3.5. Okay. ठीक है. भाई कॉलेज में जब आते हैं ना हाँ. तो सब बच्चे होते हैं, इतना तुमको मैं क्लियर कर देता हूँ. हम फाइनल ईयर तक निकलते एटलीस्ट कुछ चीजें डेवलप हुई हैं हर किसी के अंदर. ये सबने खुद ऑब्जर्व तुम खुद करोगे एज द टाइम गोज बाय. लर्न करते हो, ठीक है. बहुत सारी चीजें नए वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे हो ना बेसिकली यार. अपने घर से छोड़ के इधर आ रहे हो, नए वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे हो. इट्स ऑलवेज गुड यार. बेसिकली मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन हो जाता है. तुम इतने सारे लोगों के साथ मिल रहे हो, इतना कुछ देख रहे हो, इतना सारा नया चीजें सीखने को मिल रहा है, इतना सारा टैलेंट दिख रहा है तुम्हारे आसपास में तुमको. तो इट ब्रॉडन्स योर पर्सपेक्टिव एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टू हैव एन ओपन माइंड. तो 2-3 चीज ना, पहले तुमको एक तो है कॉलेज स्पेसिफिक और दूसरा है ब्रांच स्पेसिफिक. ब्रांच स्पेसिफिक जो चीज है ना वो है कि तुम कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो सीख जाओगे. ठीक है. तुम किसी से 10 मिनट बात करके उसको बिफ्रेंड कैसे करना वो सीख जाओगे. अगर तुम्हें पहले से ये चीज है बहुत अच्छा है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है ना, 10-15 मिनट बात किए, कभी चाय पी लिए, बात हो गया यार, चलो अब किस दिन फोन करके कोई काम होगा पूछ लेंगे. ठीक है. तो ये सब कुछ स्किल सेट हो जाए तो तुमको बाद में भी काम आएगा लाइफ में. ठीक है. सबके साथ तुमको थोड़ा ना एक दिन का टाइम मिलेगा स्पेंड करने को, क्या यार मस्त घूम रहे हैं फिर रहे हैं. ठीक है. ये एक चीज हुआ. दूसरा कॉलेज स्पेसिफिक जो है ना वो ये है कि कुछ चीज लाइक जो पर्सपेक्टिव बोला, ब्रॉडन पर्सपेक्टिव, वो तुमको मिलेगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ आ रहे हैं. ठीक है. एक लोकल कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना तो जिस स्टेट में होता है ना उसको वहाँ के बंदे ज्यादा रहते हैं, तुम्हारा माइंड थोड़ा बायस हो जाता है. लेकिन यहाँ पे है कि साउथ से बंदे, नॉर्थ से, ईस्ट वेस्ट हर जगह से. ठीक है. तो तुमको कल्चर पता चलता है, तुमको वो पता चलता है कैसे बाकी जगह के लोग सोचते हैं. अब कभी नॉर्थ इंडिया वाले बंगाली लोग गाली दे रहे हैं, कभी बंगाली वाले नॉर्थ इंडिया को गाली दे रहे हैं. ठीक है. तो ये सब चलते रहता है. उस सब के बीच में तुम हंसी मजाक करते रहते हो, सब चलते रहता है. ठीक है. तो कैसे मतलब लाइफ को लिव करना है ना अकेले, फ्रीडम कैसे, मतलब फ्रीडम मिलने से मतलब लोग पागल हो जाते हैं कि यार खाली हो गया, चलो भाई कुछ भी करेंगे. वो अपने आप को कंट्रोल कैसे करना वो सब भी सीखते हो. क्या हो गया? That was just wonderful. So many things to learn, do, teach, give and whatnot. College life do play a very important role in our life. So getting to know all these experiences from you all was really admiring to me and to all of us. So now moving forward, we do learn from our mistakes and following advices of our elders do help us a lot. So sir, my next question is, what mistakes would you think that students generally make during placement process and during preparation period? Sir, and what suggestions would you like to give to your juniors? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी तुम्हारा व्यूज था कि तुम IIT JEE क्रैक कर लिया हो तो तुमको प्लेसमेंट मिलने ही वाला है, तो ये वाला व्यूज अभी अबैंडन कर दो थर्ड ईयर में आके. बिकॉज यू कैन सी द रियलिटी इज दैट द प्लेसमेंट सिनेरियो इज नॉट गुड, स्पेशली इन आवर डिपार्टमेंट. तो ये गोल्डन होप्स लेकर मत बैठे रहना कि मेरा प्लेसमेंट लग ही जाएगा. जो जितना भी तुम्हारा GPA हो, जितना भी तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, जो भी हो, इट माइट हैपन दैट यू माइट नॉट गेट एन ऑफर इन अ कोर कंपनी. तो अभी से अपना स्किल सेट डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. स्टार्ट कोडिंग, स्टार्ट रीडिंग अबाउट फाइनेंस, स्टार्ट preparing for UPSC, start preparing for GATE, start preparing for CAT, whatever you want to do. But you should always have a plan B if plan A doesn't work. फिर तुमको वो desperation नहीं आएगा जो शंकरदीप बोल रहा था. You don't have to go through that low only, क्योंकि तुमको पता है कि तुम कुछ और भी कर सकते हो अगर तुमको प्लेसमेंट ना मिले. So start diversifying yourself from now and start to have an open mind. ये मत सोच के रखना कि मेरा ONGC में या फिर मेरा KN में लग ही जाएगा. अगर ONGC KN एग्जाम में नहीं लग रहा है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट में लगाओ, गोल्डमैन सैक्स में लगाओ, किसी और कंपनी में लगाओ. जरूर हो जाएगा. एकदम मत सोचना कि नहीं होगा. ठीक है. प्लेसमेंट के पहले तो यार लोग बहुत गलती करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो दैट इज अपॉन यू. ठीक है. वी एज सीनियर जो तुमको सजेस्ट कर सकते हैं वो यही है कि प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है. ठीक है. बिकॉज तुम्हारा प्रिपरेशन प्रोसेस जो है ना वो तुम्हारे पे पर्सनल है. ठीक है. हम लोग तुमको हर मतलब स्पून फीड नहीं करेंगे वो चीज कि तुम ऐसे पढ़ो, इसको यहाँ से पढ़ो, ये फॉर्मूला रटो, वो पढ़ो, ये नहीं हो सकता है. दैट इज टोटली अपॉन यू. ठीक है. बट
अगर प्लेसमेंट के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना कि जिसका प्लेसमेंट नहीं होता है ना वो आता है। हम भी गए थे जब इंटर्न नहीं लगा था, ठीक है, अपने सीनियर्स के पास कि हमारा सर इंटर्न नहीं लगा, अब हम क्या करें। यही क्वेश्चन पूछा था हर्षित गर्ग सर को फोन करके इंटर्न के बाद कि सर इंटर्न नहीं लगा क्या करें, ठीक है, जिंदगी बर्बाद है। सर बोले पता है क्या, यार इंटर्न मैटर नहीं करेगा अगर तुम प्लेसमेंट कर लोगे, बिकॉज इंटर्न एक 2 महीने का चीज है, ठीक है, प्लेसमेंट तुम्हें मतलब साल भर मतलब नौकरी देगा, ठीक है। एंड क्योंकि तुम उस 1% में कट आउट हो, ठीक है, तुम कर लोगे कुछ, ठीक है। भाई, भाई अगर मैं हैमर मारता हूँ ना तो सिंपल मतलब ये है, तुम्हारा बैच स्ट्रेंथ 80 है, ठीक है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि 80 के 80 प्लेस होंगे, ये तो तुमको हार्ड एंड ट्रुथ पता है, पहले ही बता रहा हूँ। सेकेंडली ऑल्टरनेटिव्स, जैसे बाकी सबने एक्सप्लेन किया, ऑल्टरनेटिव्स हमेशा प्रिपेयर रखो अपने लिए। अब बेटर होगा जो ऑल्टरनेटिव्स कर रहे हो ना उसके और तुम्हारे करंट वर्क में या पेट्रोलियम में कुछ कनेक्शंस बने रहे। इट्स नॉट लाइक कि तुम बिल्कुल अलग से फाइनेंस कर रहे हो और अलग से पेट्रोलियम कर रहे हो। पेट्रोलियम फाइनेंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन पेट्रोलियम सेक्टर। ऐसे ही डेटा साइंस, कुछ भी करो, कनेक्शन मेंटेन रखना, ठीक है, यूनिसन मेंटेन रखना दोनों के बीच में, लेकिन हाँ प्लान होना चाहिए इररिस्पेक्टिवली, कहीं पे भी प्लान हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। और हाँ ये भी मान लेना कि भाई खास कर तुम्हारे बैच सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, आई डोंट नो अबाउट द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो आएंगे या हैं अभी, उनके लिए मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, लेकिन हाँ तुम लोगों के लिए तो कोविड नहीं जाने वाला, इस मार्केट अभी डाउन होने वाला है, ये बहुत मीडियोकर रहने वाला है, सो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। प्लानिंग अच्छे से करनी है, प्लानिंग बहुत डिफरेंटली करनी है, जो पहले करते थे वो अब नहीं रह सकता। एक बात ऐड करूंगा मैं यहाँ पे कि अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मत हो जाना कि मुझे इसी कंपनी में जाना है या यही करना है, कि मुझे ONGC ही जाना है, मुझे के नहीं जाना है। ऐसे अगर करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। मान लो तुमने सोच लिया कि मुझको के नहीं जाना है, पता चला कि GD ही नहीं निकला, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनसर्टेन है। तो बस दिमाग में ये रखना है कि जो भी कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी आएगी मुझे 100% देना है, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट नहीं होना है, आगे बढ़ जाना है। अगर ONGC आई नहीं हुआ, मतलब ONGC आई 100% दिया नहीं हुआ, चलो ठीक है केन आएगी, वहाँ 100% दिया नहीं हुआ, चलो गेट है। मतलब ऐसे ये मतलब सिर्फ अपने आप को मतलब कि ये रखने की रिग्रेट ना हो मुझे, हर चीज़ में अपना 100% माइंडसेट रखना है भाई, ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा रहना है, 100% दो। और सो अगर नहीं हुआ तो तुम्हें मतलब अंदर ये तुमको फील होगा कि मैंने अपना 100% दिया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो वो सही चीज़ है। नहीं मतलब अगर 100% देने के बाद भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, फिर तुमको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा है या फिर क्या किसमें तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है पूछना कि 100% देने के बाद भी क्यों नहीं हुआ। अगर तुम इसको आइडेंटिफाई कर पाओ तो यू कैन एलिमिनेट इट एंड देन इन द नेक्स्ट इंटरव्यू तुम अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इतना बस याद रखना है, ये 4 ईयर के बाद लाइफ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एग्जैक्टली। सेकेंडली प्लेसमेंट्स आर नॉट द एंड, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं बाहर ऑफ कैंपस अप्लाई करना, ठीक है। मैं पेट्रोलियम में भी बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, तुम पेट्रोलियम में भी कर सकते हो ऑफ कैंपस, कर सकते हो, ऐसा नहीं। देखो वापस से एक और चीज, लेकिन बहुत ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाना ऑफ कैंपस को लेकर। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है बट है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत। पेट्रोलियम लेके नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारा जो इंटरेस्ट है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, ठीक है। एक टारगेट मत रखना कि यही करना है मेरे को, प्लेसमेंट्स में ही बैठना है और प्लेसमेंट से ये कंपनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इतना रिजिड अपने 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 वर्कफोर्स में रहोगे ना तो नहीं होगा, कहीं पे सक्सेसफुल नहीं होगा। मे भी हो जाओ यहाँ पे, हो जाए शायद कंपनी में, लेकिन फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। थोड़ी फ्लूइडिटी लानी पड़ेगी अपने नेचर में। एक चीज मैं बोलूंगा, प्रोफाइल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अगर तुम जा रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम्हारा इंटरेस्ट फाइंड करना। तुम ये नहीं कि भाई सब लोग डेटा साइंस कर रहे हैं तो मैं भी अपना डाइवर्सिफाई डेटा साइंस में कर लेता हूँ। मतलब हाँ, डेटा साइंस जो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डेटा साइंस में, उनका सबसे बड़ा रीजनिंग यही है क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और ये ट्रूथ है, ये कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये है, ये फैक्ट है ये। बट एक तुम्हारा इंटरेस्ट भी मैटर करेगा ना, तुम क्या कर सकते हो वो चीज आगे के 5 साल 6 साल में। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अगर तुम जाओ तो एक बार अपना इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करना, 2-3 चीजें उठाना, देखना किसमें इंटरेस्ट आ रहा है और उसमें ही कंटिन्यू करना। Thank you, sir. I'm sure aspirants will take lessons from this and they will try to avoid their mistakes. So with this, we come to the end of our session.
end of the second episode of Placement Talk. It was great pleasure to interact with you all, and we learned a lot of new things. Thanks to all our viewers. Yeah, that's all. Thank you, sir. It has really been a pleasure. And once again, congratulations for all your future endeavors. Thank you.